Okay, Jai Hind. In this lecture, I am going to discuss singly linked list. So, first of all, what is singly linked list? What is linked list? Linked list is the collection of objects which called nodes that are stored randomly into the memory. Let us take an example. So, singly linked list. And in a linked list, each node contains two parts. The first part contains the data, or we can say information of that node, and second part contains the address of the next or successor node. So we can write down like next, or we can write down link. So that is the node in a given linked list. First part contains the data part, or you can say information part, and second node contains the address of the next node or successor node. In a singly linked list, we will discuss different operations. The first operation that we are going to discuss here, that is insertion. Another operation, that is deletion, and another operation, traversing. Okay. In case of insertion, there will be the three cases. The case one, that will be inserting a new node at the beginning. That means we are inserting a, or you can say adding a new node at the beginning of the given linked list. Next case will be, that is inserting a new node at the ending. That means at the end, we are going to insert a new node in the given linked list. And the third case will be inserting a new node at any specified specified position. And in the same way, in case of deletion, the different cases will be case one, deleting a node at the beginning. That means we are going to delete first node of the given linked list. That can be deleting a node at the ending. And the last case, in case of deletion, deleting a node at some
specified position. That means we will enter a position from the user and उस node को we will delete. So we will do it all these operations one by one. So first of all, we are doing the first operation. Now, first operation is we have to insert a new node at the beginning. So let us create an example. For example, the address of this node is 100, for this is 200, for this node 300, and for this node that is 400. That is given by the malloc during the creation of this node. And for example, the value of this node is, for example, 7, 5, 2, 9. Randomly I have taken some values. Because this is the last node, it will be null. And in that case, it will be 200 because next node is 5. It will be 300 and it will be 400. And it will contain a special pointer that is called head, and it will contain the address of the first node. Now, according to this operation, what we have to do at the beginning, we have to insert a new node. So, just I have taken a new node, and for example, the value of this node is 11. Initially, it will be null, and for example, we are taking is at a new, and the address, for example, given by the malloc is 500. So, as a first node in the given linked list, I have to insert this. Now, in this case, how to make a part of this node? And second thing, what we have to do, now the initially first node is 7, then the value of head is 100. If I am adding at the beginning, then first node will become the 11. Then head will belong to this node. Then how to do this? Then we are writing to this like I'm writing new of next equal to head. जब मैं ये स्टेटमेंट रन कराऊंगा तो then what will happen? That is, here it will be it will be 100 and it will be connected like this after executing this statement. Now, another thing that we have to do, initially whenever we did not insert this new node, the first node was 7. अब first node जो है वो 11 हो गया. That means what we have to do? That is head equal to new. So in that case, what will happen? That is, it will become our head and value will be 500 because now
after inserting this node as a first node in the beginning, it will become the first node, and always head will contain the address of the first node. So this is our first case. That means inserting a new node at the beginning. The second case will be inserting a new node at the ending. अब हमें करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द गिवन लिंक लिस्ट, इसी को फिर से पिकअप कर लेते हैं। और अब इस बार हमें क्या करना है कि जो गिवन लिंक लिस्ट है उसमें लास्ट में एक नोड को इंसर्ट करके दिखाना, ठीक है। तो इन दैट केस, बिकॉज आई एम इंसर्टिंग एट द लास्ट, तो आई हैव क्रिएटेड ए नोड. It will contain the two parts. For example, the value of first part, for example, that is 17, and initially it will be null, and for example, that is new, and address given by the malloc, for example, that is 600. Now, अब मुझे इस new node को as a last node insert करके दिखाना है, ठीक है। तो first of all, अगर मैं इसको लास्ट में ऐड कर रहा हूं तो मुझे एक पॉइंटर उससे पहले वाले नोड पे चाहिए। तो हाउ इट विल बी, जैसे हम राइटिंग ptr इक्वल टू हेड। जब मैं ये स्टेटमेंट रन करूंगा तो व्हाट विल हैपन, मेरा जो ptr है दे सिंपली वेरिएबल, इट विल कम हियर, ठीक है। देन आई एम राइटिंग while ptr of next. next means what? if मेरा पॉइंटर अगर यहाँ पे है तो हर नोड का नेक्स्ट वाला पार्ट, दैट विल सेकंड पार्ट, इज नॉट इक्वल टू नल। तो मैं क्या करूं, ptr इक्वल टू ptr ऑफ नेक्स्ट। देखते हैं क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे, जब मेरा लूप पहले बार रन होगा तो मैंने देखा क्या ptr का नेक्स्ट नल है, नो। तो उस केस में इट विल एंटर एंड इट विल ptr इक्वल टू ptr ऑफ नेक्स्ट। दैट मीन्स मेरा जो ये पॉइंटर है दैट विल शिफ्टेड टू द नेक्स्ट नोड हियर। अगेन इट विल चेक, तो आई एम अगेन चेकिंग कि ptr ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू नल, नो। तो इट विल बी ptr इक्वल टू ptr ऑफ नेक्स्ट। आई विल कम हियर एंड इन द सेम वे इट विल प्रोसीड and finally it will come here because at this node ptr next is null, और उसके बाद ये लूप से बाहर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको 17 को लिंक लिस्ट का पार्ट बनाना है। तो व्हाट वी कैन डू, अब मेरा पॉइंटर यहाँ पे आ चुका है, तो आई विल राइट हियर ptr ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू न्यू। अब जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट रन करूंगा तो क्या होगा, ptr ऑफ नेक्स्ट मीन्स दिस पार्ट, न्यू मीन्स 600। तो इन दैट केस जब ये स्टेटमेंट रन होगा तो यहां पे एड्रेस आ जाएगा, दैट इज 600 एंड इट विल बी कनेक्टेड लाइक दिस, ओके। अब क्योंकि 17 मेरा लास्ट नोड है तो उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में नल होना चाहिए, एंड आवर जॉब इज डन। In that way, in a given linked list, you can add a new node at the ending. चलिए, come to the third case. ये that is our second case. Oh, sorry. Come to the third case. And according to third case, हमें inserting a new node at some
at some specified position. हम यूजर से एक पोजीशन एंटर कराएंगे और उस पोजीशन पे नए नोड को एंटर करेंगे. तो मैं इस कोड को इरेज कर देता हूं सो दैट अकॉर्डिंग टू न्यू केस आई कैन राइट डाउन. इसी लिंक लिस्ट को फिर से ले लेते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मुझे लिंक लिस्ट गिवन है और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस केस मुझे एक स्पेसिफाइड पोजीशन पे एक नए नोड को इंसर्ट कराना है. फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर से एंटर कराता हूं पोजीशन इक्वल टू 3. दैट मीन्स मैं थर्ड पोजीशन पे एक नए नोड को इंसर्ट कराना चाहता हूं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड पोजीशन? ये मेरा फर्स्ट नोड है, दैट इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन एंड सो ऑन. अगर मैं थर्ड पोजीशन पे कराता हूं दैट मीन्स जो नया नोड होगा वो थर्ड पे इट विल कम हियर. दैट मीन्स बिटवीन द नोड 7 and 5. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगेन मैंने इस नोड को एज ए न्यू कॉल किया. By malloc I'm getting this address, for example that is 700, and for example the value of this node is 29 and initially the next part is null. Now I have to insert this node at position number 3. Then in that case I'm writing the code. I'm writing ptr इक्वल टू हेडर. तो जैसे मैं स्टेटमेंट को रन कराऊंगा तो मेरा ptr यहाँ पे आ जाएगा. दैट इज हियर एड और यू कैन से हेडर. सिंपली यू कैन कॉल एज हेड और हेडर. देन आई एम राइटिंग फॉर i इक्वल टू 0, I less than position minus 1 and I plus plus. We will take it as a 1. मैं लूप को 1 से चला रहा हूं. ठीक है, और उसके बाद हमें अगर कंडीशन ट्रू होती है तो मैं क्या करूं, ptr इक्वल टू ptr ऑफ नेक्स्ट. अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल i इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स i मेरा 1 हो गया. पोजीशन मैंने 3 एंटर कराई तो 3 माइनस 1 दैट इज 2. 1 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू हो गई, देन इट विल एंटर, ठीक है, इनटू द लूप. तो मुझे क्या करना है, ptr इक्वल टू ptr ऑफ नेक्स्ट. दैट मीन्स मेरा जो पॉइंटर है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया. उसके बाद जब सेकेंड टाइम लूप चलेगा i इक्वल टू i प्लस प्लस, तो ये मेरा हो गया 2. 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स है, दैट मीन्स जो मेरा पॉइंटर है वो यहाँ पे आके स्टॉप हो गया. मैं इसको रब कर देता हूं. ओके, उसके बाद अब हमें क्या करना है कि इस नोड को 29 को 7 और 5 के बीच में इंसर्ट करना था. तो जैसे हम राइटिंग that is ptr, that is ptr of next. इसको हम न्यू कॉल कर रहे हैं इक्वल टू न्यू. अब जैसे मैं स्टेटमेंट को रन करूंगा ptr of next यानी दिस पार्ट इक्वल टू न्यू मीन्स 700, तो इट विल बी 700. और जैसे ही 700 होगा ये यहां से डिस्कनेक्ट हो जाएगा एंड इट विल बी कनेक्टेड टू हियर. न्यू ऑफ, क्योंकि ये न्यू ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू ptr ऑफ नेक्स्ट. देखिए इस स्टेटमेंट को रन करा के देखते हैं. न्यू ऑफ नेक्स्ट मीन्स दिस पार्ट. ओके,
एंड PTR ऑफ नेक्स्ट मीन्स दिस पार्ट. तो यहाँ पे कौन सा एड्रेस आ गया, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा मेरा 200. जैसे 200 आएगा इट विल बी कनेक्टेड हियर. तो इन दैट वे हम एक नए नोड को किसी भी स्पेसिफाइड पोजीशन पे इंसर्ट करा सकते हैं. तो दीज आर द 3 केसेस इन द केस ऑफ insertion, that is inserting a new node at the beginning, inserting a new node at the ending. Now come to the second operation, that is deletion. Now we'll discuss deletion, and again in the deletion there are 3 cases. The first case is deleting a node at the starting, or you can say at the beginning. The first case is deletion में that is first case, deleting a node at the beginning. That means हम फर्स्ट नोड को डिलीट करना चाहते हैं. चलिए लेट अस टेक एन एग्जांपल. फिर से मैंने एक लिंक लिस्ट को क्रिएट कर लिया. क्योंकि सिंगल लिंक लिस्ट से हर नोड के 2 पार्ट होंगे. एंड फॉर एग्जांपल मैलोक के थ्रू इस फर्स्ट नोड को एड्रेस इसको स्टोर कर रहे हैं 100 पे, 200, 300 एंड 400. ओके, अगेन इट विल कंटेन स्पेशल पॉइंटर दैट इज हेड या हेडर या समटाइम स्टार्ट. तो इसके अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, क्योंकि ये मेरा फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 7, 5, 2 एंड 3 ऐसे रैंडमली मैंने वैल्यू पिकअप कर ली. तो यहाँ पे एड्रेस आएगा 200, यहाँ पे आएगा 300 और यहाँ पे आएगा 400. एंड क्या ये लास्ट नोड है, तो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को मैंने नल कर दिया. ओके, अब अकॉर्डिंग टू दिस केस हमें करना क्या है कि जो भी गिवन लिंक लिस्ट है उसके फर्स्ट नोड को हमें डिलीट करना है. दैट मीन्स आई वांट टू डिलीट दिस नोड. तो उस केस में कोडिंग के थ्रू कैसे करेंगे, तो मैंने लिखा PTR इक्वल टू हेडर. तो जैसे मैं लिखूंगा हेड या हेडर, इसको हेडर लेते हैं. ओके, तो दैट इज PTR जो है इस नोड को डिनोट कर रहा है. उसके बाद क्योंकि हमने इस नोड को डिलीट कर दिया, पहले 7 फर्स्ट नोड था, अब 5 फर्स्ट नोड हो जाएगा. ठीक है, तो इन दैट केस अब मेरा हेडर उस पर शिफ्ट हो गया. ओके, तो दैट इज हेडर इक्वल टू हेडर ऑफ नेक्स्ट. तो जैसे मैं स्टेटमेंट रन करूंगा दैट मीन्स माई हेडर शिफ्टेड टू हियर और इसके अंदर 200 आ जाएगा. अभी लिंक लिस्ट सेल हो गया, बट इसके पास जो भी मैलोक के थ्रू मेमोरी एलोकेट हुई थी उसको हमें फ्री कराना है. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्री, दैट इज ए फंक्शन, और सिंपली आई एम राइटिंग PTR. तो उससे जो उसके पास मेमोरी एलोकेटेड होगी दैट विल बी रिलीज. क्योंकि जब तक आप उसको फ्री नहीं कराएंगे दैट विल नॉट बी रिलीज. तो इन दैट वे दिस इज द फर्स्ट केस कि हम गिवन लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड को कैसे डिलीट करेंगे. कम टू द सेकंड केस. Now, according to second case, we are deleting a node at the ending. जो भी लिंक लिस्ट हमें गिवन होगी उसके लास्ट नोड को हमें डिलीट करना है. तो पहले एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगेन लिंक लिस्ट कंटेनिंग 4 nodes and each node contains 2 parts, as already we are aware about this. For example, the value of first node is 5, 3, 2, 7. This is the
लास्ट नोड, तो इसके नेक्स्ट पार्ट को नल कर दिया. अगेन दैट इज हेडर, और इसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल ये 100 है, तो इट विल बी 100, 200, 300 एंड 400. So in that way it will be connected. Okay. Now according to this case, what we have to do, जो लिंक लिस्ट गिवन है उसके लास्ट नोड को हमें डिलीट करना है. दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू डिलीट दिस नोड. तो हाउ इट विल बी डन? तो सबसे पहले वी हैव टू रीच हियर. तो जस्ट आई एम राइटिंग ptr इक्वल टू हेडर. जैसे मैं स्टेटमेंट रन करता हूं तो यहाँ पे मेरा ptr सिंपली वेरिएबल, तो ptr मेरा यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. देन आई एम राइटिंग while ptr of next is not equal to null. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो मैं क्या करूं? ptr equal to ptr of next plus ptr1 भी ले लिया मैंने. आई एम टेलिंग द नीड ऑफ दिस ptr. तो जब फर्स्ट टाइम ptr मेरा यहाँ पे है, क्या नेक्स्ट पार्ट नल है? नो. तो ये ptr मेरा नेक्स्ट वाले नोड पे शिफ्ट हो जाएगा ही. प्लस मैं लिख रहा हूं ptr1 इक्वल टू ptr, दैट मीन्स ये मेरा ptr1 हो गया. अगेन जब सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो मेरा ये ptr1 हो जाएगा और ये ptr हो जाएगा. जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा ये मेरा ptr1 हो जाएगा और ये मेरा ptr हो जाएगा. ओके. तो मैं बाकी रब कर देता हूं. ओके. तो नाउ फाइनली ये मेरा ptr1 है और ये मेरा यहाँ पे जाकर स्टॉप हो जाएगा क्योंकि ptr ऑफ नेक्स्ट इसका नल है. अब हमें करना क्या है कि क्योंकि ये नोड डिलीट कर रहे हैं और ये लास्ट नोड बन जाएगा तो इसके नेक्स्ट पार्ट को नल करना है. तो दैट इज ptr ऑफ 1, ptr1 ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू नल. तो जैसे मैं ये करूंगा देन इट विल बी नल. प्लस इसके पास जो मेमोरी जिस नोड को हम डिलीट कर रहे हैं उससे रिलीज कराना है. तो वो कैसे करेंगे? फ्री, यहाँ पे पॉइंटर ptr है, फ्री ptr एंड जॉब इज डन. लास्ट केस भी डिस्कस कर लेते हैं. Now, according to last case, what we will do कि हम यूजर से पोजीशन एंटर कराएंगे और उस पोजीशन के एलिमेंट को हमें डिलीट करना है. एक एग्जांपल बना लेते हैं पहले से. फॉर एग्जांपल दैट इज 11, ये सॉरी that is, और ये मेरा नल हो गया. फॉर एग्जाम्पल मैलोक के थ्रू ये मैं 400 पे स्टोर करा रहा हूँ तो इट विल बी 400 और इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस केस दैट इज आवर थर्ड वन, तो डिलीटिंग ए नोड एट सम पोजीशन जो हम यूजर से एंटर करा रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल हमने यूजर से एंटर कराया पोजीशन इक्वल टू 3, दैट मीन्स हम थर्ड पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड पोजीशन? दिस इज माय फर्स्ट नोड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, दैट मीन्स आई वांट टू डिलीट दिस नोड. अगर मैं पोजीशन 1 एंटर कराता हूं दैट विल बी द केस की बिगिनिंग हो गया. अगर मैं पोजीशन इक्वल टू 4 एंटर कराता हूं इन दिस केस दैट विल बी द डिलीटिंग नोड एट द एंडिंग. बट राइट नाउ
we are deleting position 3 element. Then in that case, what will happen? Again, I'm writing a loop for I equal to 1, I less than position -1, I plus plus. अगर कंडीशन ट्रू होती है then PTR equal to PTR of next. तो उससे पहले मैं ले लेता हूं PTR equal to header. ठीक है, तो ये हमारा इनिशियली PTR यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंग दिस स्टेटमेंट. और जब मैं लूप के हिसाब से करूंगा, दैट मीन्स पहले मैंने लिखा I equal to 1, पोजिशन एंटर करा रहे हैं 3, 3 - 1 2, 1 लेस देन 2, कंडीशन इज ट्रू. दैट मीन्स मैं लूप के अंदर एंटर कर गया एंड अकॉर्डिंग दिस PTR इक्वल टू PTR ऑफ नेक्स्ट. दैट मीन्स जो मेरा पॉइंटर है वो आपका सेकंड एलिमेंट पे आ जाएगा. जब सेकंड टाइम लूप चलेगा I प्लस प्लस, दैट मीन्स ये मेरा 2 हो गया, 2 लेस देन 2, कंडीशन इज फॉल्स. दैट मीन्स मैं लूप से बाहर आ गया. अब मेरा पॉइंटर यहाँ पे है और जब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, दैट मीन्स मुझे इसको यहां पे कनेक्ट करना है. ओके, तो उस केस में हमें क्या करना होगा? दैट इज आपने ले लिया एक पॉइंटर PTR1. PTR1 इज PTR ऑफ नेक्स्ट. तो इसको मैं PTR1 कॉल कर रहा हूं. ठीक है, अब मुझे इसको यहां पे कनेक्ट करना है, तो मैं क्या लिखूं? PTR ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू PTR1 ऑफ नेक्स्ट. दैट मीन्स PTR ऑफ नेक्स्ट मीन्स दिस पार्ट, ये इक्वल हो जाए PTR1 ऑफ नेक्स्ट यानी 400. तो यहां पे क्या हो जाएगा? 400 आ जाएगा. और जैसे यहां पे करेंगे इट विल बी कनेक्टेड टू दिस नोड. वन मोर थिंग जो हमें करनी है कि इस नोड को हमने डिलीट कर दिया, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ लिंक लिस्ट. इसके पास जो मेमोरी लोकेटेड है उसको फ्री कराना है. तो सिंपली आई एम राइटिंग फ्री PTR1. तो इन दैट वे जो भी मेमोरी इसको लोकेटेड है दैट विल बी रिलीज. ओके, थैंक यू.